first describe the definition of autoimmunity. So, autoimmunity occurs when immune system mistakenly identifies body's healthy cells, tissues, and organs as foreign threats and launches an attack against them. Organ systems and diseases associated with them are nervous system. Nervous system related autoimmune diseases are known as neurological autoimmune disease. And target organs are brain, spinal cord, and neuromuscular junctions. Diseases mentioned here are multiple sclerosis and myasthenia gravis. So these two basically diseases that are associated with autoimmune diseases. And multiple sclerosis, if we see the definition, then in this condition, the immune cells attack protective myelin sheaths surrounding nerves, disrupting communication between brain and body. तो इम्यून सेल हमारी अटैक करती है माइलिन शीथ पे. माइलिन शीथ नर्व्स के सराउंडिंग करने वाली शीथ होती है, नर्व को सराउंड करने वाली. और उसके डिसरप्ट होने से, उसके डैमेज होने से क्या होता है कि ब्रेन और बॉडी के बीच का कम्युनिकेशन जाता रहता है. इस कंडीशन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं और ये एक न्यूरोलॉजिकल ऑटोइम्यून डिजीज़ है. दूसरा है माइस्थीनिया ग्रेविस. सो इन दिस कंडीशन एंटीबॉडीज ब्लॉक और डिस्ट्रॉय कम्युनिकेशन रिसेप्टर्स बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स कॉजिंग वॉलंटरी मसल वीकनेस. उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती है जो कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय करती है रिसेप्टर के बीच में, और ये रिसेप्टर्स होते हैं नर्व्स और मसल्स के बीच में. तो ऐसी डिजीज़ को माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं. अनदर वन और सेकेंड autoimmune disease related with the endocrine system are endocrine autoimmune diseases, and target organs are like hormone producing glands like the pancreas and thyroid. Diseases associated with autoimmune endocrine dysfunction are diabetes mellitus type 1 diabetes mellitus, and Graves disease. So in the Graves disease, antibodies target the thyroid gland, overstimulating it to produce an excess of thyroid hormone, that is hyperthyroidism. So antibodies यहाँ पे टारगेट करती है थायराइड ग्लैंड को, और इसका जो ओवर स्टिमुलेशन होता है ना थायराइड ग्लैंड का, तो उससे एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं या कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज़ेस. और फिर आता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस. तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, द बॉडीज़ इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स इन पेनक्रियाज लीडिंग टू हाई ब्लड शुगर लेवल. हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है पैनक्रियाज में, और जिससे हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है. तो ये कहलाती है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस. And this is also one of the condition where autoimmunity occurs. Condition number 3 or disease 3 are the gastrointestinal tract diseases, or we can say GIT or gastrointestinal autoimmune diseases. And target organs for these kind of diseases are the digestive tract lining. Diseases mentioned here are ulcerative colitis and Crohn's disease. So in the ulcerative colitis, that one condition causes long-lasting inflammation and ulcers in the innermost lining of large intestine and rectum. तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है और अल्सर्स हो जाते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम के इनर मोस्ट लाइनिंग में, इसलिए इसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं. ये भी एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है, जैसा कि मेंशन है. और नेक्स्ट वन इज़ क्रॉन्स डिजीज़. Crohn's disease is an inflammatory bowel disease that causes deep inflammation anywhere along the digestive tract, from mouth to anus. Yes, mouth to anus.
तो ये एक क्रॉन्स डिजीज़ है ना, ये भी एक इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ है जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट माउथ से लेके एनस तक प्रभावित होती है। Fourth one is bones and joints related autoimmune diseases, and we can say rheumatic autoimmune disease. And target organs are joints, bones, and connective tissue. तो ये हमारे joints, bones और connective tissue को affect करते हैं। और इसमें आते हैं rheumatoid arthritis। और rheumatoid arthritis मतलब there are immune system that attack the synovium or lining of the joints, causing painful swelling, bone erosion and joint deformity. तो इसमें ये होता है कि इम्यून सिस्टम साइनोवियम और जॉइंट की लाइनिंग को अफेक्ट करते हैं, जिससे पेनफुल स्वेलिंग, बोन इरोजन एंड जॉइंट डिफॉर्मिटी अराइज होती है। फिर नेक्स्ट है बोन रिलेटेड डिजीजेस में आती है जॉगरेन सिंड्रोम। And Sjogren syndrome means they often co-occurs with rheumatoid arthritis, and they primarily attack moisture-producing gland, causing dry eyes and dry mouth, but can also impact joints. तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरीली वो अटैक करते हैं मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड को, जैसे कि आइज और माउथ, ठीक है ना। अब फिफ्थ काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़ जो अफेक्ट करती है ऑर्गन को, वो होता है स्किन को अफेक्ट करते हैं। तो स्किन से रिलेटेड जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती है ना, दैट आर नोन एज डर्मेटोलॉजिकल ऑटो इम्यून डिजीजेज। एंड टारगेट ऑर्गन्स आर क्यूटेनियस टिश्यू लेयर, एंड डिजीजेज मेंशन्ड आर सोराइसिस एंड डर्मेटोमायोसाइटिस। So psoriasis is a condition that in that condition an accelerated skin cell production cycle triggered by immune signal creating thick, scaly and inflamed plaques on skin surface. तो यहाँ पर एक्सेलरेटेड स्किन के प्रोडक्शन सेल प्रोडक्शन होता है और उसे इम्यून सिग्नल जो होते हैं ना, वो ट्रिगर कर दिए जाते हैं, जिससे स्किन आपकी थिक, स्केली और इन्फ्लेम्ड प्लेक्स आते हैं स्किन पे। तो इस कंडीशन को सोराइसिस कहते हैं। ये भी एक सीरियस कंडीशन होती है, सीवियर कंडीशन है। और नेक्स्ट है डर्मेटोमायोसाइटिस। तो डर्मेटोमायोसाइटिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अ रेयर इन्फ्लामेटरी डिजीज़ मार्क्ड बाय डिस्टिंक्टिव स्किन रैशेज अकम्पनीड बाय मसल वीकनेस। तो इसमें इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में क्या होता है कि डिस्टिंक्टिव स्किन रैशेज आ जाते हैं और इसमें मसल की वीकनेस होती है।